Good morning. So today we are going to discuss about the social and political philosophy. We have discussed about in totality, about in general, that what does the Indian philosophy wants to say. What is Indian philosophy in its overall view? Okay, and we have also discussed what is Western philosophy. What does the Western philosophy wants to convey in its overall totality? Okay, so today we are going to discuss about the social and political philosophy. Okay, see, we have four parts in our syllabus. In philosophy syllabus, we have four parts. That is Indian philosophy, Western philosophy, Western philosophy, social and political philosophy, social and political philosophy, and we have philosophy of religion. Okay, so we have these four parts in our syllabus. Broadly, we have said what does the Indian philosophy wants to convey, what is Indian philosophy in its totality view. Western philosophy, similarly, we have seen that what is Western philosophy, what does the Western philosophy wants to say in its overall view. Today we will look after the social and political philosophy. Okay, लेकिन आप एक चीज यू आर नोटिसिंग वन थिंग दैट एवरीवेयर देर इज फिलोसफी 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 ओके फिलोसफी एंड व्हाट इज फिलोसफी वी हैव सीन दैट फिलोसफी जो है व्हाट इज फिलोसफी वी हैव सीन दैट फिलोसफी इज knowledge. We have seen that philosophy is knowledge. Sophist ne said that man is the measure of everything. There is nothing good, nothing bad, nothing right, nothing wrong. So if a man is able to prove, justify it, it becomes the thing right. Whether it is good or bad, right or wrong, it doesn't mean, because man is the measure of everything. If a man able to prove that thing, it becomes right. Okay, लेकिन सोक्रेटिस जब आए तो उन्होंने कहा कि नो, दैट इज नो, सोक्रेटिस ने प्रूव किया, जस्टिफाई किया कि नॉलेज इज वर्च्यू. हम लोगों ने वेस्टर्न फिलोसफी जब पढ़े तो उन्होंने, यानी कि किस तरह से उन्होंने, सोक्रेटिस ने उसे प्रूव किया, सोक्रेटिस ने जस्टिफाई किया कि नॉलेज इज, ये नहीं होता है कि मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग. इफ ए नॉलेज डजंट कंटेन्स वर्च्यू देन इट इज नो नॉलेज एट ऑल. सो नॉलेज इज वर्च्यू. सोक्रेटिस ने इसे जस्टिफाई किया, सोक्रेटिस ने इसे प्रूव किया. सो एवरीवेयर, तो व्हाट डज द फिलोसफी बिकम्स, फिलोसफी मीन्स नॉलेज. Okay, so what does the philosophy, and knowledge is virtue. So what does the philosophy becomes, philosophy becomes virtue. So everywhere we have seen there is knowledge, and in every part of the philosophy we will see there is knowledge, and knowledge is virtue. Okay, so we have seen that. Now social and political philosophy. इसीलिए चूँकि एवरीवेयर वी हैव सीन देयर इज फिलोसफी, देयर इज नॉलेज, देयर इज वर्चू, इसीलिए सोक्रेटिस को कहा जाता है ही इज द फादर ऑफ फिलोसफी, बिकॉज ही हैज सेट द स्टैंडर्ड, बिकॉज ही हैज सेट, उन्होंने नॉलेज का एक मापदंड तैयार किया, उन्होंने नॉलेज का एक क्राइटेरिया बनाया कि नहीं, ये नहीं कि वट एवर यू से, वट एवर यूर इफ यू आर इंटेलिजेंट यू कैन प्रूव bad thing also, wrong thing also, so it becomes knowledge. No,
If a thing doesn't contains virtue, it is no knowledge at all. Okay, it may be your opinion present in the particular group of society, present in a particular class of society. So लेकिन नॉलेज जब बनता है तो इट बिकम्स यूनिवर्सल, इट बिकम्स ओवरऑल, whether in this sphere, this part, this or that sphere, every part, it becomes virtue. So Socrates ने जस्टिफाई किया, Socrates ने प्रूव किया कि नॉलेज इज वर्च्यू, इसीलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ फिलॉसफी. ओके, बिकॉज ही हैज सेट द स्टैंडर्ड, मापदंड, criteria of the knowledge, that knowledge if it doesn't contains virtue, it is no knowledge at all. So knowledge is virtue. Every type of knowledge should contains the virtuous thing. So similarly social and political philosophy, ये social and political philosophy है क्या? social and political फिलॉसफी. ओके, तो यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ें देखते हैं, सोशल, पॉलिटिकल एंड फिलॉसफी. ओके, यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ें देखते हैं. तो सोशल, व्हाट इज दिस सोशल? फिलॉसफी हम लोग समझ गए कि नॉलेज और वर्चूज में होना चाहिए. ओके, वर्चुअस एक्ट होना चाहिए वो. ओके, and so what is social and what is political? Okay, so social means, what is social? social में दो चीज़ें आती हैं, social thought and social institution. social में सोसाइटी में क्या होता है, थॉट होता है, उसी के बेसिस पे सोसाइटी बनती है, उसी के बेसिस पे सोशल इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है. तो यहाँ पे सोशल में क्या हो जाता है, सोशल थॉट, social thought and social institution, social institutions. तो पॉलिटिकल में क्या हो जाता है, पॉलिटिकल में भी वही हो जाता है कि पॉलिटिकल मीन्स ऑल्सो पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थॉट एंड, इसका इंक शायद खत्म हो रहा है, एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. ओके, एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. सो सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी में सोशल थॉट, सोशल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. ओके, तो सोशल थॉट है क्या? ओके, सोशल थॉट, अब हमें समझना होगा व्हाट इज सोशल थॉट. सोशल थॉट है क्या? तो सोशल थॉट जो सोसाइटी के बारे में दिए वो हो गया सोशल थॉट. उसी तरह पॉलिटिकल थॉट है क्या? पॉलिटिकल स्फेयर में जो थॉट दिए गए वो हो गया पॉलिटिकल थॉट, और उसी के बेसिस पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाए गए, उसी थॉट के बेसिस पे सोशल इंस्टीट्यूशन बनाए गए. तो सोशल थॉट में कौन कौन आ जाते हैं, अगर हम देखें सोशल थॉट में कौन कौन आ जाते हैं. सोशल थॉट में अगर देखें तो जो लोग भी मेन एक्चुअली इम्पोर्टेंट पर्सन, जो लोग भी सोशल थॉट दिए, जैसे गांधी जी हो गए, जैसे गांधी जी हो गए. ओके, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, मार्क्सिज्म हो गए, जैसे मार्क्सिज्म हो गया, या फिर कम्युनिज्म हो गया, मार्क्सिज्म का ही पार्ट है, कम्युनिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, और गांधी जी गांधीज्म हो गया. ओके, सो गांधीज्म हो गया. सो एंड beside this we have liberty, equality, justice. All these are what? All these are just social thought. जैसे लिबरलिज्म होना चाहिए सोसाइटी में, या कम्युनिज्म होना चाहिए सोसाइटी में, या फिर डेमोक्रेसी होना चाहिए सोसाइटी में.
क्या होना चाहिए सोसाइटी में? लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ऑल दीज आर जस्ट सोशल थॉट, वी कैन से इट। ओके, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, ओके, एंड जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया। और क्या क्या सोशल थॉट में आ सकते हैं? सोशल थॉट में और क्या क्या आ सकते हैं? जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द फीमेल, ओके, टुवर्ड्स द, उसको एक लोअर क्लास समझा जाता है। ओके, सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, दैट they are not given land and property right, that there are in many parts of the country female feticide is prevalent, that they are also being neglected from, यानी कि political life में, that's why different types of reservation in given in many states in the country, so that they can lead a better life, they can also prosper। okay, so gender discrimination हो गया। फिर और क्या हो सकता है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट जो कि है उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, यानी कि निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है लोअर कास्ट का। सो इसीलिए बहुत तरीके के रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई, ताकि वो लोग भी ऊपर उठ सके, और बहुत तरीके के उनको बेनिफिट गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म में, और भी बहुत तरीके से उन्हें प्रोवाइड किया जा सकता, सो दैट दे कैन राइज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सो दैट दे कैन ऑल्सो come to the mainstream and be a part of the country, be a, यानी कि main part of the country like other caste or like other class of people। okay, so gender discrimination हो गया, caste discrimination हो गया, और ये social thought जो कि है यहाँ से ही, एक मिनट, ये gender discrimination हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो ये अगर हम देखें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे भी, तो ये जो है ये अभी से नहीं है, ये हमारे बहुत पुराने से है। यहाँ तक कि हमारे गौतम बुद्ध जो 6th सेंचुरी BC में हुआ करते थे, उन्होंने भी कहा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज बैड, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। उन्होंने भी इक्वालिटी को लाना चाहा, उन्होंने भी कास्ट को हटाना चाहा, कि ऑल पीपल, वो कहते हैं ना, गांधी जी, वो गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि वर्च्यू, नॉलेज, करेज, विस्डम, ये सब किसी जाति, किसी समुदाय की पपोती नहीं होती है, ये किसी कास्ट में हो सकती है, किसी लोग में हो सकती है, इनका किसी भी कास्ट से कोई भी मतलब नहीं, चाहे वो करेज हो, नॉलेज हो, विस्डम हो, ब्यूटी हो, या कुछ भी अच्छा चीज़ हो, ये किसी भी कास्ट में, किसी भी लोग में हो सकता है। सो इट इज़ रॉन्ग टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, ओके, वन पर्सन फ्रॉम द अदर पर्सन। सिमिलरली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पुराने से देखते आए हैं कि मैत्रेयी थे, और भी बहुत सारे, खास करके फ्रीडम फाइटर के समय में बहुत सारे जो कि थे, उन्होंने जेंडर के, यानी कि विमेन फ्रीडम फाइटर, दे हैव कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टुवर्ड्स द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। ओके, सो ऑल दिस आर जस्ट, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस। लिबर्टी में बहुत सारे ने थॉट दिया कि लिबरलिज्म होना चाहिए, तो किसी ने कहा कि लिबरलिज्म होना चाहिए, और क्या कहते हैं उसको, कम्युनिज्म होना, ये इक्वलिटी में कम्युनिज्म की बात कही गई है, सोशलिज्म की बात कही, यहाँ पे कैपिटलिज्म कहता है कि कोई कहता है कि कैपिटलिज्म होना चाहिए, लिबरलिज्म होना चाहिए, किसी ने कहा इक्वलिटी ये अच्छा चीज़ है, यानी कि कम्युनिज्म होना चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए। सो ऑल दिस थिंग्स, सो ये सब हम लोग सोशल थॉट में डिस्कस करते, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये जस्ट एक फ्यू एग्जांपल्स दिए, और उसी के बेसिस पे
ओके, उसी के बेसिस पे हम लोग देख रहे थे कि पिक्चर चल रहा है या नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। ओके, एंड उसी के बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस हम लोग बनाए गए, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या क्या हो गए? सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे हो गए फैमिली हो गए, सोसाइटी हो गया हमारा, स्टेट हो गया हमारा, जैसे स्कूल्स कॉलेज, ये सब भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। या फिर टेम्पल चर्च, ये सब भी सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशन रहते हैं, जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं ताकि सोशल डेवलपमेंट हो सके, इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो सके, स्टेट का डेवलपमेंट हो सके, वो सब इंस्टीट्यूशन जो कि है हमारे सोशल थॉट पे जो बनाए गए, सब जितने भी सोशल आइडियल सोशल थॉट, जैसे गांधी जी हो गए, कार्ल मार्क्स यहाँ पे हो गए, या फिर जैसे लिबरलिज्म में भी बहुत अच्छे अच्छे थॉट दिए गए, इक्वलिटी के बेसिस पे कम्युनिज्म पे दिए गए, जेंडर में देखेंगे तो अगर हम लोग इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे थॉट दिए गए, कास्ट पे देखेंगे तो नारायण गुरु जो केरला के थे उन्होंने भी कास्ट को हटाना चाहा। तो ये बहुत, यानी कि ये बहुत पुराने से ही समय से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात चल रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, बिकॉज वी आर रैशनल पीपल, सो वी आर गोइंग टू, स्पेशली इन द फिलॉसफी, वी आर गोइंग टू define everything on the basis of rational ground. Okay, rationality what says? रैशनैलिटी तो गौतम बुद्धा ने क्लियर कर दिया था कि रैशनैलिटी मीन्स, या किसी भी समुदाय में, किसी भी जाति में, किसी धर्म में, किसी भी लोगों को हो सकते हैं। यह नहीं कि जो इस कास्ट में, इस क्लास में जन्म लिया, पैदा हुआ, उसी के बेसिस पे रैशनैलिटी डिफाइन होती है, उसी को रैशनल होता है, वो ऐसी कोई भी बात नहीं है। ओके, ये कहीं भी हो सकती। सिमिलरली अगर हम पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखें तो पॉलिटिकल थॉट होती है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो पॉलिटिकल थॉट, जैसे पॉलिटिकल थॉट में भी गांधी जी आ गए, गांधीज्म जैसे आ गए पॉलिटिकल थॉट में, गांधीज्म आ गए, या फिर कार्ल मार्क्स आ गए। ओके, कार्ल मार्क्स आ गए। तो ये दोनों जो कि थे, इन्होंने पॉलिटिकल पे भी, पॉलिटिकल इसलिए क्योंकि दोनों ने स्टेट को ख़त्म करना चाहे, एक स्टेटलेस सोसाइटी बनाना चाहे। दोनों ने एनार्किज्म को सपोर्ट किया। क्यों? लेकिन इन्होंने, जो गांधी जी ने एनार्किज्म को सपोर्ट किया वो मोरल बेसिस पे किया। गांधी जी इज बेसिकली ए सोशल एंड मोरल फिलोसफर। ओके, लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो स्टेटलेस सोसाइटी बनाना चाहा, एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहा, तो वो उन्होंने एक वायलेंस बेसिस पे बनाना चाहा। लेकिन गांधी जी का भी था एम कम्युनिज्म लाना सोसाइटी में, सोसाइटी को क्लासलेस बनाना। ओके, सोसाइटी को क्लासलेस बनाना और स्टेटलेस बनाना, कम्युनिज्म लाना। लेकिन इन्होंने मोरालिटी की बात चुनी, और इन्होंने जो कि है कार्ल मार्क्स ने भी, इन्होंने भी चाहा कि स्टेटलेस सोसाइटी हो, क्लासलेस सोसाइटी हो, और क्लासलेस सोसाइटी हो। तो ये सब सारे चीज़, लेकिन इन्होंने कहा कि ये सब वायलेंस का इन्होंने तरीका अपनाया, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मोरलिटी। सो और भी बहुत सारे, जैसे रूसो हो गया। रूसो ने क्या कहा? रूसो ने जैसे जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया। तो जनरल विल मतलब पॉपुलर सॉवरेंटी, तो सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट दिया जैसे रूसो ने। रूसो हो गया, रूसो हो गया। तो रूसो ने एक पॉपुलर सॉवरेंटी की कॉन्सेप्ट दिया जो आगे चल के डेमोक्रेसी के रूप में बना। ओके, रूसो ने, कौटिल्य चाणक्य ने भी यानी कि पॉलिटिकल थॉट दिया, उन्होंने भी सॉवरेंटी की यानी कि बात कही। चाणक्य ने, कौटिल्य ने, उन्होंने भी इंटरनल सॉवरेंटी, एक्सटर्नल सॉवरेंटी ऑफ द किंग की बात कही। तो कौटिल्य चाणक्य के बाद और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे लास्की हो गया, लास्की ने भी सॉवरेंटी की बात कही। तो सब ने बहुत सारे, इसके अलावा जो कि थे जेरमी बेंथम जो कि थे, उन्होंने हमारे यानी कि यूटिलिटेरियन का प्रिंसिपल दिया, जो डेमोक्रेसी का, यानी कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर, जो
भले ही क्रूड फॉर्म में ये है, लेकिन ये आगे चल के डेमोक्रेसी का रूप लिए। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, जो जेरेमी बेंथम ने जो कि ये प्रिंसिपल को अपनाया, जेरेमी बेंथम, और यूटिलिटेरियन, और फिर इसको करेक्ट करके रिफाइंड फॉर्म में लाके इसको यानी कि और अच्छा बना के जेएस मिल ने लाया इसको कॉन्सेप्ट, जेएस मिल ने। तो ये सब जो है जेएस मिल ने, तो ये सब जस्ट पॉलिटिकल थॉट है। और पॉलिटिकल थॉट में और भी बहुत कुछ आ जाता है, जैसे पॉलिटिकल थॉट में सेकुलरिज्म, ह्यूमनिज्म, ग्लोबलाइजेशन, टेररिज्म, ये सब पॉलिटिकल थॉट है। ओके, ह्यूमनिज्म, सेकुलरिज्म और भी बहुत सारे जो कि हैं, तो ये सब पॉलिटिकल थॉट हैं। और यानी कि तो इसके अलावा जैसे राइट्स हो गया, राइट्स फ्रॉम द स्टेट, व्हाट वी आर गेटिंग द राइट्स फ्रॉम द स्टेट, तभी तो हम लोग ड्यूटी जो कि ड्यूटी टुवर्ड्स द स्टेट, व्हाट इज़ आवर ड्यूटी टुवर्ड्स द स्टेट। सो ऑल दीज आर जो कि हैं पॉलिटिकल थॉट हो। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाए थॉट के बेस। जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे मान लीजिए किसी ने कहा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को अगर ले लेते हैं, किसी ने कहा कि थियोक्रेसी अच्छा होना चाहिए, यानी कि रिलीजन के बेसिस पे गवर्न अच्छा किया जा सकता है स्टेट को। किसी ने कहा कि मोनार्की अच्छा होना चाहिए, किसी ने कहा थियोक्रेसी होना चाहिए, तो किसी ने कहा मोनार्की होना चाहिए। जैसे प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो ने भी मोनार्की को सपोर्ट किया, कौटिल्य, चाणक्य जो कि थे उन्होंने भी मोनार्की को सपोर्ट किया। और जैसे इस्लामिस्ट कंट्री में बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान में या बहुत सारे कंट्री में ये सब जो कि हैं, जैसे पाकिस्तान में हो गया, तो ये सब रिलीजन के बेसिस पे गवर्न करना चाहते हैं अपने स्टेट को। भले ही नाम का वो डेमोक्रेसी है, लेकिन रिलीजन ज़्यादा उसमें प्रेवलेंट करता है, तो उसे एक थियोक्रेटिक स्टेट हम लोग मान सकते हैं। जैसे मोनार्की के बेसिस पे जैसे हो गया चाणक्य हो गया, प्लेटो हो गया, चाणक्य हो गया, प्लेटो हो गया, और भी बहुत लोग जो कि है मोनार्की के बेसिस। तो फिर जो कि है, लेकिन रूसो जो कि है, जेरेमी बेंथम जो कि है, या फिर और भी बहुत लोग जो कि हैं, उन लोगों ने इसे डेमोक्रेसी के रूप में बनाना चाहा, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के रूप में बनाना चाहा। ओके, डेमोक्रेसी के रूप में बनाना चाहा। तो डेमोक्रेसी में कौन कौन आ गए, तो डेमोक्रेसी के रूप में बना। अब डेमोक्रेसी है क्या? ओके, डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल, वी एवरी नो। हम लोग डेमोक्रेसी को विस्तृत रूप में आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो डेमोक्रेसी है क्या? तो डेमोक्रेसी में मेनली थिंक फॉर्म यानी कि 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट मेनली रहता है। एक हो गया हमारा पार्लियामेंट, दैट इज़ द लॉ मेकिंग। ओके, एक हो गया सुप्रीम कोर्ट, that is the what is the role of the Supreme Court, that is the interpreter of the laws, interpreter of the constitution। ओके, फिर एक हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव हो गया। एग्जीक्यूटिव मीन्स व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि किस तरह से वो एग्जीक्यूटिव हम लोगों को गवर्न करता है। ओके, तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव या फिर लॉ मेकिंग, पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑल दिस 3 ऑर्गन? द रोल ऑफ ऑल दिस 3 ऑर्गन इज बेसिकली for the betterment of the individual, for the betterment of the society, for the betterment of the state। तो हम लोग पॉलिटिकल थॉट में ये सब पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन उसके बेसिस पे जो बनाया गया उसमें हम लोग ये सब पढ़ते हैं। सोशल थॉट में हम लोग ये सब पढ़ते हैं, जो सोसाइटी में थॉट बनाए गए उसके बेसिस पे जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए वो हम लोग पॉलिटिकल यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम लोग इसी सब चीज़ की पढ़ते हैं। व्हाट वी आर स्टडिंग इन सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी इज दैट सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी इज बेसिकली the study of the social thought, social institution, political institution on the basis of the rational and justifying grounds for the so that it can become close
closeness to the ideal society, closeness to the ideal institution that can be beneficial for the individual, that can lead to the proper development of the individual, for the society, for the state also. Okay, so similarly, so सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी हम लोग यही देखते हैं कि किस तरह से इन जब सोशल एंड पॉलिटिकल फिनोमेना की स्टडी करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी में तो इसको हम लोग वी आर डिस्कसिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी in that what is the rational ground of justifying all these things so that it can lead to the betterment of the individual. So what is the social and political phenomena की study करते हैं, okay, so that it can be lead to the better social thought, better institution, better political thought, better institution that can lead to the betterment of the individual, that can lead to the betterment of the society, that can lead to the betterment of the state, that can lead to the betterment of the ओवरऑल कंट्री. ओके, सो इस यही सारे चीज़ को, यही सारे थॉट इंस्टीट्यूशन को हम लोग फिलॉसफी की नज़र से जब देखते हैं सो दैट इट कैन बी बेटर for the overall development of the individual, society and the state. Okay, so that it can come all this social thought, all this social institution, political thought, political institution can come to the हम लोग rationally we are defining all these things, we are judging all these things on the basis of a rational ground and we justify all these things so that it can come very close to the ideal institution so that it can lead to the proper development of the इंडिविजुअल सोसाइटी एंड द स्टेट. सो यही सब सारी चीज़ हम लोग पॉलिटिकल सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी में डिस्कस करते हैं. ओके, सो टुमारो वी विल डिस्कस व्हाट इज फिलॉसफी ऑफ द रिलीजन. ओके, इफ यू हैव नॉट जॉइंड, ओके, एंड द थिंग लास्ट थिंग, join the philosophy for complete preparation of the philosophy optional for civil services examination. ओके, और इसकी फीस जस्ट 30,000 रुपीज़ है. इसकी फीस जस्ट 30,000 रुपीज़ है. और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन कॉल ऑन 828769248. ओके, सो यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हैं द फिलॉसफी तो इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन आपको किया जाएगा. कंप्लीट मीन्स एक फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एवरी टॉपिक इन द क्लास इटसेल्फ. सेकेंड थिंग दैट यू विल गेट इज दैट class notes, written class notes in the class itself, that will sufficient for you to get above 60% marks or above 300 marks in the IS examination or civil services examination. Thirdly, you will get all यानी कि printed notes that are collected from many good books, so that फिर एक टीचर की यही होती है कि वो एक टीचर का रोल यही होता है कि वह स्टूडेंट के जो कि है टाइम को बचाए और स्टूडेंट की मेहनत को बचाए, ताकि वो अपना टाइम, वो अपना मेहनत दूसरे सब्जेक्ट में लगा सकें. क्योंकि सिर्फ फिलॉसफी से ही आप ऑप्शनल से ही सिर्फ आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकते. उसके लिए जीएस भी पढ़ना है, जीएस में भी समय दें. लेकिन हम लोग यहाँ पे करेंगे कंप्लीट प्रिपरेशन एक क्लास में इटसेल्फ, सो दैट you can devote all your time after the class to your GS preparation. Then you will get definitely success in the civil services examinations. Okay, तो यहाँ पे वही हम लोग जो प्रिंटेड नोट्स बनाए हैं वो बहुत किताबों से लेके बने. अगर आप लोग उन किताबों को पढ़ने लगे तो साल भर से ज़्यादा लग जाएगा. ओके, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि एक किताब में कभी भी एक दो टॉपिक को छोड़ के, एक दो चैप्टर को छोड़ के अच्छा नहीं मिलेगा. ओके, तो हम लोगों ने जितनी भी किताब, किसी में ये चैप्टर अच्छा है, किसी में ये चैप्टर अच्छा है, किसी में ये चैप्टर, तो सब से कंक्लूड करके सबको मिला के हम लोगों ने एक जो प्रिंटेड नोट्स या क्लास नोट्स बनाए हैं, जो फुल एक्सप्लेनेशन बनाए हैं. तो इसलिए हम टीचर की ज़रूरत होती है, सो दैट दे कैन लेसन योर एफर्ट एंड सो दैट you can devote all your time after the class for your GS preparation. Okay, so you will get, okay, and after the prelims you will get test series, and that do everything in the यानी कि 3 things:
full explanation of every topic. Secondly, you will get every type of class notes, everything in the class notes itself, and that will be sufficient for you. That will listen your hard work. That will maximize your chances of getting selected, and that will लीड यू टू, यानी कि आप अपना फुल प्रिपरेशन दूसरे सब्जेक्ट में फुल टाइम डिवोट कर सकते हैं. दैट विल save your time also, that will save your hard work also. Okay, so only 30,000 में three things: print full explanation plus class note plus printed notes collected from many book, more than you can say 200 books. Okay, so क्योंकि एक बुक में कभी भी एक सब्जेक्ट, कभी भी एक दो टॉपिक को छोड़ के अच्छा नहीं मिलेगा. ओके, सो वी हैव डन दैट. सो if you will join, naturally you will be in better position than the other individual. Okay, so you can join it. Okay, and for admission you can call, admission is open. For admission you can call 8287692486, and fees is only 30,000 rupees in the philosophy, and it will lead you for the complete preparation of the philosophy option. This is just one stop center for all your philosophy needs. Okay, so thank you very much. Okay.